صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت اچھا مجمع لگ رہا ہے، کافی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فطرت سے ہم سبوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ جلسہ جلوس تقریریں ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری زندگی اسی طریقے سے گزر جائے۔ تو شاعر نے کہا، رہے خلوص میں ہم لڑکھڑا کے چلتے ہیں، رہے خلوص میں ہم لڑکھڑا کے چلتے ہیں، پرایا بوجھ بھی اکثر اٹھا کے چلتے ہیں۔ کیا بات! رہے خلوص میں ہم لڑکھڑا کے چلتے ہیں، پرایا بوجھ بھی اکثر اٹھا کے چلتے ہیں، ہمارے نرم دلی کو تو نہ بزدلی سمجھ، خدا کے خوف سے ہم سر کو جھکا کے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے! پھر دوسرے شاعر نے کہا، خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں، در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ خدا کی دین کا جو شکر ادا کرتے ہیں، در حقیقت وہ محمد سے وفا کرتے ہیں، اور ذکر ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر، سننے والوں میں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک ہوتا ہے جہاں پر بھی نبی کا رہبر، سننے والوں میں فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں۔ بھائی جان، کل کی طرح آواز بنا دیں تاکہ تمام لوگ بآسانی سمجھ سکیں، سن سکیں، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، عمل کر کے زندگی اور آخرت بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کل بھی میری تقریر اسی عنوان پر تھی، آج بھی میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ جو بھی ہے، کیونکہ مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ الحمدللہ فون بھی آ چکا ہے، اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ آنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ چہلم کی محفل میں ہو تو آپ لاسٹ میں پہنچتے ہیں، جلسے میں بھی آپ لاسٹ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں، جو بھی آپ پہلے پہنچ جائیں۔ آپ کم سے کم ادارے کے اساتذہ آئیں، وہ جو ہے کچھ تاثرات آپ کو دیں، سمجھائیں کہ بھئی ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنی محنت کی، اور ان کی محنت آج رنگ لائی ہے۔ الحمدللہ حفاظ کرام کی جو ہے دستار، سبحان اللہ سبحان اللہ، 14 بچوں کی جو ہے دستار بندی ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، سنیں، مجھے بہت وہ بات یاد آتی ہے۔ اورنگزیب کا نام آپ نے سنا ہے؟ بادشاہ کا نام سنا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے 2 شہزادے تھے، دونوں حافظ قرآن ہوئے۔ دونوں حافظ قرآن ہوئے تو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا باپ ہے، یعنی بچوں کا دادا ہے، تو بیٹا ایک کام کرو، تم جاؤ تمہارے دادا کو جا کر سناؤ کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے۔ بچے آئے، میرے پاس بالکل سمے نہیں ہے، اس لیے بس 2-4 باتیں میں آپ کو سمجھا دوں، سنا دوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب کہا کہ بیٹے جاؤ اپنے دادا کے پاس اور جا کر کے تم اپنے دادا کو سناؤ کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے، تو بچے گئے، جانے کے بعد کہا دادا عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے، عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ دادا نے کہا کون سی خوشی کا دن ہے، کون سی بات ہے؟ پوتوں نے کہا دادا ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے، ہم دونوں حافظ قرآن ہو گئے۔ جب اتنا کہنا تھا، دادا نے کہا بیٹا میرے یہاں سے نکل جاؤ، یہ خوشخبری تیرے باپ کے لیے ہے، یہ خوشخبری تیرے باپ کے لیے ہے، عید کا دن تیرے باپ کے لیے ہے، میرے لیے تو خوشی کا دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! بچے کو جب ڈانٹے تو بچے دوڑ کر اپنے باپ کے پاس گئے۔ آج کا باپ ہوتا، آج کا بیٹا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ جب بچے دوڑ کر اپنے گھر گئے، اللہ اکبر، اورنگزیب عالمگیر سے ملے، آنکھوں میں آنسو تھا۔ کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ بچوں نے کہا ابو جیسے ہی ہم نے دادا کو خوشی کی بات سنائی کہ عید کا دن ہے آپ کے لیے، آپ کا 2 پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے، تو ہمارے دادا نے کہا یہ خوشی تیرے باپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا بیٹا کتنا
रहा है। आज हमारे भाई कितना दीन से दूर है, तालीम से दूर है, कुरान से दूर है, अहादीस मुस्तफा से दूर है। जरा सोचें, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर, अल्लाह अकबर, जैसे ही सुना कि मेरे बाप ने कहा कि बेटा ये तेरे बाप के लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, वक्त का बादशाह है, आज का बेटा होता तो कहता अब उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, खाना पीना बंद कर दिया जाए, बाप से जाना मिलना जुलना बंद कर दिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, उन्होंने क्या कहा? तो कहा कि मेरे दादा ने कहा ये तेरे बाप के लिए खुशी का दिन है, अल्लाह अकबर। और उनके दादा ने कहा था कि कयामत के मैदान में तेरे बाप के सर पर नूरानी ताज होंगे, तेरे दादा के सर पे तो नूरानी ताज नहीं होंगे, इसलिए ईद का दिन तेरे बाप के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। आज का बेटा तो गुस्सा करता, औरंगजेब आलमगीर वक्त का बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान की गर्दिश करते हैं और दौरा करते हैं। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आलमगीर उसी दिन से जो है कुरान करीम साथ में लेकर रात में सोने जाते तो कुरान करीम खोल कर पढ़ने लगते, दिन में टाइम मिलता तो कुरान करीम पढ़ने लगते, जब भी वक्त मिलता कुरान करीम पढ़ने लगते, घोड़े से नीचे उतरते कुरान पढ़ने लगते, फैसला करने के बाद बैठते कुरान पढ़ने लगते। अल्लाह अकबर। कुर्सी से अपने घर में जाते कुरान पढ़ने लगते। अल्लाह अकबर। चंद दिन नहीं गुजरा कि औरंगजेब आलमगीर भी वक्त का हाफिज कुरान बन गए। अगर गलत कह रहा हूं तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबूत भी है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर जो है वक्त का जो है हाफिज कुरान बन गए, जो कि बाप ने कहा था, यानी उनके दादा बच्चों के दादा ने कहा था ये खुशी तेरे बाप के लिए है, हमारे लिए खुशी नहीं है। औरंगजेब आलमगीर ने सोचा अगर मेरा बेटा हाफिज कुरान बना है तो नबी ने फरमाया है कल मैदान महशर में हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर नूरानी ताज होंगे, तो मेरे बाप ने कहा है तो तेरे बच्चों के लिए, यानी जब तेरा बच्चा हाफिज कुरान है तो तेरे सर पर ताज होगा, अगर मेरे सर पे ताज होना है तो मेरे बेटे को हाफिज कुरान होना होगा। औरंगजेब आलमगीर पढ़ने लगे, इतनी मसरूफियत रहने के बाद, इतनी जो है जद्दोजहद करने के बाद हाफिज कुरान होने, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने जो है तरावी की नमाज भी पढ़ाई। आज आप कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी फिक्र क्या है? ये कुरान सरकार के एक सहाबी हैं हजरत उसैद बिन हुज़ैर। आज बच्चों की कदर कम होती है, इज्जत कम होती है, बच्चों से जो है हम सही से प्यार नहीं कर पाते हैं, लेकिन तारीख पढ़िए हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तफसीर नईमी में है। अल्लाह अकबर। हजरत उसैद बिन हुज़ैर घोड़े को खूंटे से बांध देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद जब घर में रहते हैं तो घोड़ा उछलता है, कूदता है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो घोड़ा उछलना और कूदना बंद कर देता है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक दो मरतबा नहीं हुआ, मुकम्मल रात भर घोड़ा जब हजरत अंदर होते तो घोड़ा उछलता था, और जब बाहर होते तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता था। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत उसैद बिन हुज़ैर फजर की नमाज के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर उन्होंने नमाज अदा की है। वो जानते हैं कि मेरे मुस्तफा हमारे दिल की भी जानते हैं। मेरे आका की बारगाह में हजरत उसैद बिन हुज़ैर हाथों को जोड़कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह रात में एक अलग मंजर हुआ है। क्या हुआ है? हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं या नबी अल्लाह, जब मैं घर के अंदर होता तो मेरा घोड़ा उछलता कूदता है, लेकिन जब मैं घर के बाहर हो जाता था तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ उसैद बिन हुज़ैर ये तो बता, जब घर के अंदर था तो कर क्या रहा था? हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं या नबी अल्लाह, जब मैं घर के अंदर था तो कुरान की तिलावत कर रहा था। आज करते हैं, आप करते हैं, कोई मर जाए तब, हाँ, और जिस वक्त हजरत सब रो रहे हैं उस टाइम कुरान पढ़ा जा रहा है। हाँ, जब सब कोई बातें करती है, कोई आकर कहती है कि देखिए उनको फलाना डॉक्टर के पास लेकर जाते तो जिंदगी बच जाती, उसकी जान बच जाती, कोई आकर कहता है तुमने मेरा मशवरा नहीं माना, ये नहीं जानता है कि जब तक इंसान की जिंदगी है, खुदा की कसम मौत का वक्त मुकर्रर है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाओ, जब मौत आनी है तो आनी है। फिर
तुम वहां जाकर वो सब बातें कर रहे हो, किसी के दिल को तोड़ रहे हो, और पूरे उत्तर दिनाजपुर में वही हो रहा है। तलवार के वार से आदमी को जहां लगता है, जहां करता है, तो दवाई के जोर से वो जख्म भर जाता है, लेकिन किसी के दिल को अगर आपने ठेस पहुंचाया, किसी को तकलीफ दी, तो ये दर्द ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये जख्म ऐसा वैसा जख्म नहीं है। खुदा की कसम, तलवार के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन किसी के दिल को दुखाया ये कभी भरने वाला नहीं है। लेकिन आज हम हर जगह ये काम करते हैं। हम आका के दीवाने हैं, हम आका के चहीते हैं, आका के जो है फॉलोवर हैं, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती है। कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूना है। लेकिन आज हम आका की जिंदगी को फॉलो नहीं करते। सरकार खाते कैसे थे, सरकार सोते कैसे थे, सरकार बातें कैसे करते थे, सरकार का जो है जब वो लेजा कैसा होता था, लेकिन आज हम इन चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। वक्त नहीं है, सबके पास मोबाइल है और सबको सिर्फ मोबाइल में ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। कुरान आंखों में सजाया हुआ है, कुरान को कभी हम नीचे नहीं उतारते हैं। एक शायर ने कहा था, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। क्या बात है हज़रात, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उसैद बिन हुज़ैर जरा ये बता, रात में जब तू घर के अंदर था करता क्या था? उस हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं घर के अंदर था, कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया, है उसैद बिन हुज़ैर, जब तू सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, आसमान से नूरी फरिश्ते जमीन पे उतर रहे थे, घोड़ा उन फरिश्तों को देखकर उछल रहा था, कूद रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गरीब नवाज, नारे तकबीर। हम कुरान नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान से दूर जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, हमारे बच्चों को हम कुरान पढ़ाएं, अपने बीवियों को हम कुरान पढ़ाएं, अपनी बेटियों के हाथों में हम 20,000 का मोबाइल ला कर दे पाते हैं, लेकिन अल्लाह की मुकद्दस किताब कभी उसके हाथों में नहीं देते। कि जो टाइम तेरे पास बच जाता है, इससे उससे बातें करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय कुरान करीम खोल ले, कुरान की तिलावत करती रहेगी, तेरे घरों में खुदावंद कुद्दूस की बरकतें नाज़िल हो जाएंगी। चाहिए, हम कभी नहीं करते हैं। हम देखते ये हैं कि नहीं भाई मॉडर्न जमाना है, जमाना जैसा चल रहा है, जैसे लोग चलते हैं हमें वैसा चलना है। नहीं, अल्लाह अकबर, और हालात ऐसे हैं। इस्लाम आपने समझा नहीं। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, मैंने गरीब नवाज की तारीख पढ़ी है। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही जो है 90 लाख या 92 लाख काफिर मुसलमान हो गए। क्या मतलब था? मतलब ये था, गरीब नवाज की बारगाह में एक पंडित, अल्लाह अकबर, पृथ्वीराज चौहान जो अखंड भारत का सम्राट था, उससे कहा कि आप सिर्फ मुझे इजाजत दें, कहा कि तुम उसको जो है भगा दोगे उस बाबा को? कहा हाँ। उस फकीर को भगा दोगे? कहा हाँ। मैं मुनाजरा करूंगा, मंत्र इतने मेरे पास हैं, वो खुद बहुत लाजवाब हो जाएंगे और हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अगर तुमने ये काम किया तो मैं इतना इनाम दिया जाएगा। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब वो पंडित निकला है, अल्लाह अकबर, वो पंडित बिल्कुल झूमता हुआ और जो है रोबो दबदबा के साथ चलते चलते अजमेर शरीफ के करीब आए। मेरे गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठकर दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें बयान कर रहे हैं, लोग जो है सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो पंडित आया, आने के बाद आंखें बड़ी बड़ी थी। उस पंडित ने कहा बाबा का क्या हुआ? कहा मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं। कोई भी आदमी हमको कहे कि आपको मैं जलील करना चाहता हूं, आपसे बातें करना चाहता हूं, तो हमारा भी तेवर बदल जाएगा, हम भी इंसान हैं। लेकिन मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, अगर मुनाजरा करने के लिए तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप कहां से आए? कहा फलाना जगह से आया हो। कहा थोड़ी देर बैठ जाइए, मुनाजरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, उनको बिठाया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा हम मुनाजरा करना चाहते हैं। कहा दूर से आए हैं, जरा पानी पी लीजिए। पानी जब पेश किया तो आपको सोचने लगा ये मैं उससे मुनाजरा करना चाहता हूं, उसको जो है जलील करना चाहता हूं, लेकिन ये मुसलमानों का बाबा कैसा है, मुसलमानों का जो है रहबर कैसा है, अल्लाह अकबर, कौम का ये रहबर कैसा है, हम उसको मुनाजरा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो मुझे पानी पेश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने कहा मुनाजरा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कल भी मुनाजरा हो जाएगा, पहले आप बैठ जाए, खाना सामने रखा
रखा गया, जब खाना उठाया हल्के के नीचे एक निवाला गया, अब उसकी दिल की दुनिया बदलने लगी। काम में मुनाजरा इनसे करना चाहता हो, ये दीन कितना अच्छा है, ये मजहब कितना अच्छा है, जिसको मैं जलील करना चाहता हूँ वो उससे प्यार से बातें कर रहा है, मुझे पानी पेश कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है। ये दीन कितना अच्छा है, ये मजहब कितना अच्छा है। जब ये इतने अच्छे हैं तो मदीने के मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। तो पंडित गरीब नवाज को जलील करने आया था, वो कह रहा है अब मैं तुमसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है हमें उस नबी का कलमा पढ़ा दे, हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का मकसद और मंशा यह है, हमें सोचना चाहिए हमारा किरदार, हमारी रफ्तार, हमारे गुफ्तार कैसे हो गए हैं। हम जहां भी जाते हैं जलील खार होते हुए नजर आते हैं, हमारा किरदार अच्छा नहीं, हमारा रफ्तार अच्छा नहीं। अल्लाह अकबर, कहीं एक तीर आ जाए तो पूरा इलाका टूट पड़ता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप खुदा की कसम 3-3 महीने तक बिस्तर पर है, बेटा 10 मिनट के लिए नहीं जाता है, कभी बाप की खबर नहीं पूछता है, कभी माँ के बारे में जाकर के ये भी नहीं पूछता मेरी माँ तुम्हें तकलीफ किस बात की है। याद रखिएगा, पीर के पास जाने के लिए मंजर नमाज मना नहीं कर सकता है, पीर के पास चाहिए, लेकिन खुदा की कसम जिस घर में माँ बाप जैसे इतने बड़े जो है शख्सियत मौजूद हो, सबसे पहले उनकी बारगाह में जाना चाहिए। अगर कोई वक्त का पीर भी दुआ करे, वक्त का मुफ्ती भी दुआ करे, वक्त का कोई भी दुआ करे, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसान शराबी हो, वो इंसान जानी हो, वो इंसान सूदखोर हो, वो इंसान तगा देने वाला हो, वो इंसान जो है गुनहगार हो और दुआ कर दी जाए और दुआ कबूल हो जाए, कोई गारंटी नहीं, लेकिन दुआ कबूल भी हो सकती है। लेकिन खुदा की कसम एक तरीका मैं बता रहा हूं, तेरे माँ बाप अपने बिस्तर में सोए हैं, रात की तारीकी में उठ जाओ और जाने के बाद अपने माँ बाप के पैर दबाते हुए कहना मेरा फलाना काम रुक गया है, फलाना काम हो नहीं रहा है, माँ मैं परेशान हो चुका हूँ, अब्बू जान में फलाना काम में जो है फंस चुका हूँ, काम नहीं हो रहा है। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर देंगे, आदमी के बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी, कबूल होती है। हम वहां दुआ नहीं करवाते हैं, उस माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं। जितने जलसे सुने, अगर हर बेटा बाप की कद्र करता तो खुदा की कसम मुझे यकीन है मेरा पूरा का पूरा माशरा खुशहाल हो जाया करता, पूरा माशरा खुशहाल होता। लेकिन क्या है कि हम सुनते बहुत हैं लेकिन जो है अमल करते नहीं हैं। हम इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं। पहले के लोग ये करते थे, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते। अब लोगों के पास टाइम क्या है, एक तरफ तो ब्लूटूथ लगा के रखते हैं, इधर से सुनते हैं इधर ही से निकाल देते हैं। पहले के लोग कहते थे कुछ भी कर, थोड़ी नेकी कर ले और दरिया में डाल दे। आज के लोग कहते हैं कोई भी मौलवी आए, कोई भी मुफ्ती आए, किसी भी शादी के फंक्शन में जाए, कहीं पे 2-4 का साथ में आ जाए, कोई लड़की की फोटो मिल जाए, उठाओ और फेसबुक में डाल दो। मैं कहना चाहता हूं इतने भी गुनाहों में जो है अपने आप को मुलविस मत करो। कब्र में तुम्हें तन्हा तन्हा सोना है, हर इंसान अपनी कब्र में सोएगा और वो अपने अमाल को लेकर कब्र में जाएगा। चाहे मंजर नवाज कितनी गुफ्तगू कर ले, उसकी कब्र में कोई नहीं आएगा। मेरी कब्र में मैं सोऊंगा तो मेरे अमाल के बारे में मुझे ख्याल करना चाहिए, कब्र के बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए, आखिरत के बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए। मेरी नमाज से कज़ा तो नहीं हो रही है, माँ बाप की खिदमत से मैं दूर तो नहीं हो, उलमा की तौहीन तो नहीं कर रहा हो, तो उलमा से प्यार क्यों नहीं कर रहा हो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस जिंदगी में जो है बंदगी कर लें, इबादत कर लें। शायर कहता है नेकियां कब्र में बचाती है, हश्र में भी काम आती है। बात तो बहुत लंबी कर सकता था, वक्त नहीं है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जो समय में अभी हो रहा है, इस समय मुझे कहीं जाकर के रहना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की मोहब्बत, यहाँ के असातिज़ा की मोहब्बत, यहाँ के तलबा की मोहब्बत, यहाँ जो है और चर्चों की तरह नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खुदा की कसम तकरीबन कितने बच्चे 80 बच्चे हैं। सुभान अल्लाह, 80 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। किसका बच्चा है? हमारे इलाके का बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, और ये बच्चे यहाँ तालीम लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये उलमा किराम आपके घरों तक भी पहुंचते हैं। कुछ लोग, मैं तो कल भी कहा था कि हम 2500 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए एक बच्चे को पढ़ाने में स्कूल में देते हैं, लेकिन 1000 रुपए हम किसी बच्चे को मदरसे में बढ़ाते हैं तो देने के लिए कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मदरसा सबसे बेहतर होना चाहिए। बैतुल रसूल, रसूल बाबकार का घर सबसे खूबसूरत होना चाहिए। हम आका के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं, इसीलिए वक्त बहुत कम है। मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मजमे में है कोई बंदे खुदा सरकारी गौसे आजम के नाम पर 1100 रुपए दे दे।
ज्यादा इसलिए नहीं मांगूंगा, टाइम बहुत कम है। और मैंने मुफ्ती साहब ने बताया तकरीबन 2 लाख रुपए गांव के और कमेटी के लोगों ने लिखाया था, उसमें से 40,000 रुपए आए हैं, 1,60,000 रुपए बाकी हैं। अगर कोई ऐसा है उसमें से आज अभी भी दे सकते हैं। कितना हजरत? 1600 रुपए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान अहमद साहब 1600 रुपए से जलसे की खिदमत किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल व मकबूल अता फरमाए। 1100 रुपए मांगा था, कुर्सी में आप बैठे हैं, आप भी दे सकते हैं, आप जमीन पर बैठे हैं, आप भी दे सकते हैं। मेरे भाई इसको क्लोज कर दो जी, इसको भी लोग डाल देते हैं, हम तो इलाके में करते हैं हजरत चंदा, दूसरी जगह तकरीर करते हैं, ये दिखा देते हैं हजरत तो चंदा भी करते हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए करना भी चाहिए, चंदा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको यूट्यूब में ना डालें, फेसबुक वगैरह में ना डालें। आप लोग बैठे हैं, कोई 1100 वाला है? सुभान अल्लाह, आइए। कितना? 2500? 3100 क्या नाम है? हसन मंजर साहब, हसन मंजर साहब ने 3100 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल मकबूल अता फरमाए। सुभान अल्लाह, दे चुके हैं। सुभान अल्लाह, आप में से कोई नहीं है जो 1100 रुपए दे दे पूरे मजमे में? अल्लाहु अकबर, ठीक है, लेकिन यकीन है मुझे कोई ना कोई बंदे खुदा आएगा। 1100 रुपए सरकार गौसे आजम के नाम पर मांगा गया है। सरकार गौसे आजम पर लोग तन मन धन की कुर्बानियां भी देते हैं। और मेरी माँ और बहनों की तरफ मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मेरी माँ और बहनों तुम्हें उठ करके बाजार की तरफ नहीं जाना है, यहाँ बैठी हो, बैठी रहो। सैयद साहब तशरीफ लाए हैं और जो है शहनवाज हसन भी तशरीफ ला चुके हैं। आप जो है उनकी तकरीर और उनकी नातें आपको समाप्त करनी है, अपनी जगह पर बैठी रहें, लेकिन जो कुछ भी लेकर आई हो, हमने जलसों में देखा है कलिया चक मालदा फरक का बीरभूम मुर्शिदाबाद की तरफ जब औरतें देने पर आती है, खुदा की कसम गले के हार तक पेश कर देती है, पाँव के पाजाब तक पेश कर देती है, हाथ के कंगन तक पेश कर देती है, यही वो औरतें कानों की बालियां तक पेश कर देती है कोई ऐसा जो 1100 रुपए दे दे? देर मत लगाइएगा, कोई ना कोई तो उठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम है बंदे तेरे तो खुदा के, हर गरीब तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। है कोई? अल्लाह अकबर। पूरे मजमे में कोई नहीं है 1100 वाला? अल्लाह अकबर। अच्छा, तकरीबन कितने? 14 बच्चे हैं ना? 14 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। उनके गार्जियन से मेरी गुजारिश है, जरा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। है कोई उसमें से? कोई बच्चों के घर वाले हैं? वालिद हो, चचा हो, भाई हो, कोई भी हो, 14 बच्चे के गार्जियन में कोई है यहाँ पर? अगर है तो आप उठकर आए। ऐसा नहीं है कि आपसे मैं जो है हाथ पकड़ के रख दूंगा और आपसे बहुत ज्यादा मांग लूंगा, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे यहाँ रहे, खाना खाए, यहाँ पर तालीम हासिल की, 30 पारा कुरान को अपने सीने पर खालिक कायनात का फजल हुआ, महफूज हो गया पूरे मजमे में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1100 वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। आज तो बड़ा अफसोस हो रहा है, 1100 कोई नहीं है। कोई ना कोई होगा, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदे खुदा जरूर तशरीफ लाएंगे। 1100 रुपए ज्यादा नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे कि 3100 हो चुका है, 1600 हो चुका है, आप 1100 में क्यों हैं? कोई एक आदमी तो होगा, चाहे गांव के हो, चाहे गिरदो नवा के हो, चाहे इतराफ के हो, चाहे कहीं के भी हो। अगर है तो 1100 रुपए सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में लेकर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुआ कर दी जाएगी। आले रसूल, औलाद रसूल की जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई है। क्या नाम भाईजान? नाम नहीं है। सुभान अल्लाह। बगैर नाम देकर क्या होगा? हजरत 1100 दे ही दिए हैं हम। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल मकबूल अता फरमाए। मौलाना इजाज साहब आप इधर जो है 2 चादरें भेज दें, हमारी बच्चियां खड़ी हो जाएगी और वो जो है उन लोगों से जितना हो सकेगा ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा जो 5 नौजवान 500 रुपए करके लेकर आ जाए? है कोई ऐसा मेरा भाई जो माँ की मोहब्बत में खड़े हो जाए, बाप के प्यार में जो है खड़े हो जाए? 5 नौजवान 500 रुपए करके। सुभान अल्लाह। कितना? 1100 रुपए।
सुभान अल्लाह, आप कल बहुत मेहनत किए हैं, सुभान अल्लाह। ये पहला नौजवान है, सुभान अल्लाह, उन्होंने 500 रुपए से इस जलसे की खिदमत की है। दूसरा मेरे एक भाई ने 500 रुपए से जलसे की खिदमत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है। ये तीसरा मेरे भाई हैं, उन्होंने 500 रुपए दिया है। चौथा मेरा कोई भाई है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज आप लोग कैसे बैठे हैं? आप लोग दिल में जो है ये तय कर लिए हैं कि हमें उठना नहीं है, 500 ज्यादा नहीं हो रहा है, सुभान अल्लाह। एक बाबू ने जो है 100 रुपए दिया है, एक मेरे भाई ने फिर 500 रुपए दिया है। एक आदमी और जरूरत है, एक आदमी कोई ऐसा है जो 500 रुपए लेकर के आ जाए। जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, फिर सुकून से बैठ करके तकरीर भी सुनिएगा, नाते नबी भी सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के लिए जो है शोएब रजा बरकाती आए थे, फिर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, जी खोल कर वो पढ़ेंगे, और शहनवाज हसन भी जी खोल कर पढ़ेंगे। है कोई ऐसा मेरा भाई जो 500 रुपए दे दे? सुभान अल्लाह। हमारे हजरत ने जो है 500 रुपए दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल मकबूल अता फरमाए। दूसरी जगह पर तो ऐसा होता है कि जैसे ही कहा जाता है लोग उड़ जाते हैं, कल 10,000 7,786, लेकिन आज जो है दूर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन है हर कोई जो है यहाँ आकर के हिस्सा लेगा। इसलिए आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है, एक मर्तबा जो है माँ की मोहब्बत में 200 रुपए करके जो है कम से कम 10 लोग आ जाएं, सुभान अल्लाह। एक भाई ने फिर 500 रुपए दिया है। असल में यह है कि मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो फिर मैं ताकीर से भी गुफ्तगू करता, सुभान अल्लाह। देखिए एक बाबू ने फिर 100 रुपए दिया है, 200 करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह इधर वाले आ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना भेजा? अब्दुल रज़ाक साहब समिति मेंबर ना, सुभान अल्लाह। अब्दुल रज़ाक भाई समिति मेंबर है, उन्होंने 11,000 रुपए से इस जलसे की खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके देने को कबूल मकबूल अता फरमाए, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा 200 रुपए ला करके दिए हैं। आप लोगों के पास कुछ नहीं है, अगर है तो आप बिल्कुल उठ सकते हैं। 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम 10 लोग उठ जाएं। देखते हैं कौन 10 लोग हैं जो सबसे पहला आदमी खड़ा होता है। हमारे चचा 10 में से जो है पहले आकर के हिस्सा ले चुके हैं। 9 लोग 200 रुपए करके जल्दी लेकर के आ जाएं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर अगर आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका भी काम हो जाएगा। है कोई 200 रुपए माँ की मोहब्बत में लेकर के आ जाए। बाप से प्यार हर कोई करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोस्त अहबाब को लेकर के दुकान में बैठते हैं, बिरयानी की दुकान में जलसे में आकर के हजारों रुपए हम खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है आप जो देंगे वो आपको मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। 200 रुपए मेरे एक भाई ने दिया है, एक बाबू ने फिर 200 रुपए दिया है। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे चचा से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा हम भी 200 रुपए देते हैं, बाकी मोहब्बत में आ जाइए ना यार। एक शायर कहता है, वक्फ जिंदगी कर दो यानी सारे जा कर दो, वक्त जिंदगी कर दो यानी सारे जा कर दो। माँ के दूध का फिर भी, माँ के दूध का फिर भी अकादा नहीं होता, जो लिखा नहीं होता वो कभी नहीं होता। हज़रात मुहतरम अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोग हो गए हैं और 5 आदमी की जरूरत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी 200 वाले 5 और आ जाएं, सुभान अल्लाह। ये बाबू को देखिए 50 रुपए खाने के लिए लाया था, बच्चे ने कहा हजरत हम खाएंगे नहीं बल्कि गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम देकर चले जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इसीलिए जो है ताखीर हो रही है और फिर आप लोग हैं कितना 200 रुपए। हजरत यहाँ जो है मुफ्ती साहब कम से कम 300 रुपए वापस कर दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक भाई ने फिर 200 रुपए दिया है, सुभान अल्लाह। देखिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा मांगते हैं तो होता यह है। एक भाई ने फिर 500 रुपए दिया है, इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको जो है यहाँ आते हुए देखना चाहता हूँ, हर आदमी को यहाँ पर आते हुए देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान का अजीम जो है शोहरत याफ्ता शायर, शायर अहले सुन्नत जनाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सुभान अल्लाह, मुसाफा कर लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 200 रुपए लेकर के आ गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला
के देने को कबूल और मकबूल अता फरमाए। मेरे बहुत मुहिब हैं, मेरे बहुत चहीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलकत्ता इलाके में जब भी जाना होता है, उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अगर रहते हैं तो भाई कार मुझे लेकर के जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए और आवाज में लज्जत व चाशनी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। एक भाई फिर 200 रुपए, सुभान अल्लाह भैया 200 ही काटा जाएगा, आप घबराइए नहीं, 200 ही लिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छा मजमा है, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग थोड़ी देर के लिए उठ सकते हैं, लेकिन मुझसे पहले वादा करें, अगर उठेंगे तो अपनी जगह जाके बैठेंगे। भाई एक बार खाली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर उठेंगे अपनी जगह बैठेंगे जाके, थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, करना ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ऐसे में क्या होता है कि 500, 2000, 1000 मांगते हैं तो हर आदमी उठकर आ नहीं पाता है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि आप आ जाएं, आपसे जितना हो सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई उठ करके आने की कोशिश करते हैं और उसमें शरीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए भाईजान, आप भी दे दीजिए, कितना है 100 रुपए दे के चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है, देखिए बहुत खूबसूरत चेहरा है, बहुत अच्छा लहजा है, बड़ी लाजवाब जो है बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे आपकी थोड़ी देर में मुलाकात होगी। आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है, यह मदरसे का जलसा है, मदरसे में जितना आप ताउन करेंगे, एक एक रुपए देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तामीराती काम में बच्चों के अखराजात जो है इसी से पूरे किए जाते हैं, खाना वगैरह है इसी से पूरे किए जाते हैं, पूरी की जाती है। इसीलिए आप सबों से मेरी गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए आप आका की मोहब्बत में खड़े हो जाए और इंशाअल्लाह हर आदमी, मैंने जो है अपने लिए उठाया नहीं है, बल्कि मदरसे के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अपने जेब में हाथ डालिए, जिसके पास जितना हो, 200, 500, 1000, 1000, 2000, जिसको जितना देना है। कुरान में फरमाता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। हम जो सोच रहे हैं अल्लाह वो भी जानता है, हम जो दे रहे हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। इसीलिए आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है, आप थोड़ी देर के लिए उठे, मैं चादर बिछाता हूं इमाम हुसैन के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गरीब नवाज के नाम पर, जिसको जितना डालना है अगर जरा पकड़ लीजिएगा, इधर से बाबू तुम पकड़ लो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लेकर के आ जाएं, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, जिससे जितना हो सके आप उठ सकते हैं। मेरे भाई घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका जेब मुकम्मल खाली हो, 2, 4, 10 रुपए तो सबके पास होता है, जिसके पास जितना हो वो लेकर के आ जाएं। जरा उठे तो मैं देखना चाहता हूं, सब आदमी से मेरी गुजारिश है, जो दे चुके हैं वो भी आए, मैं आपको देखना चाहता हूं मेरे भाई। 110, 20, 50, 100, 200, 500, जिससे जितना हो ला करके दिए हैं। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, बेटा दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ले लो बेटा, ले लो, 50 लेना है तो ले लो अल्हम्दुलिल्लाह। आप घबरा के नहीं लीजिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। और जो